Sporting heroes hitting the streets once again. 7 women wrestlers, including Olympian winners, moving the top court alleging non-registration of an FIR on their sexual harassment charges against the Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh. Now, the Supreme Court has stepped in and send notices to find out why exactly the government has not acted in this case. Ace wrestler Bajrang Punia, meanwhile, in a sensational claim, said that the wrestlers were being forced to withdraw their police complaint. The Congress has also jumped into the row, questioning authorities on their inaction. Take a look. India's top wrestlers who brought glory to the country are once again back on the road. The wrestlers are protesting as the Delhi police are yet to file an FIR against the Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh, even after complaints of sexual harassment were filed by several women wrestlers. The wrestlers have now approached the Supreme Court seeking a fair probe into the harassment complaint against Brij Bhushan Sharan Singh. कमेटी के सामने 14 to 15 लड़कियों ने बयान दिए हैं और कमेटी बिल्कुल मना कर है कि हमारे सामने कोई नहीं आया है। तो हमने वीडियोग्राफी करवाई है, उसमें वो पूरे देश के सामने चलवा दे कि कितनी लड़कियों ने एंट्री की है रूम में। और रही बात लड़कियों के सामने आने की, देखिए इतना आसान नहीं होता है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में आके पूरे देश के सामने बोलना कि हाँ हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है। FIR तो रजिस्टर कीजिए, आप FIR रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं तो किस चीज का न्याय की हम विश्वास करें। Making a sensational claim, Tokyo Olympic bronze medalist Bajrang Punia said that the wrestlers are being offered money to remain silent. अगर हमें जरूरत पड़ी तो जो लोग गए हैं घर पे उनके पैसे लेके गए हैं, दबाव बनाने के लिए गए हैं, अगर जरूरत पड़ी, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम उनके नाम मीडिया के आगे भी लेंगे। Brij Bhushan Sharan Singh, facing charges of sexual harassment, evaded questions on the ongoing dangal. जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो खिलाड़ियों के आरोप में कोई दम है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। Wading into the controversy, the Congress party has slammed the government for failing India's national heroes. जब वो पहली दफा आए उसके बाद उनको दोबारा आनी चाहिए था, जब ही न्याय मिलना चाहिए था। जब इंतजार देख के न्याय नहीं मिला, यही मेरा सवाल है और ये बड़ा गंभीर मामला है। Changing tack this time, the wrestlers have welcomed any political support for their protests. In January, the protesters had requested CPM leader Brinda Karat to leave the stage as it was a protest by the athletes. The athletes had then called off their protests after an assurance from the sports ministry that a panel was being formed to look into their complaints. The wrestlers claim no action has been taken yet against the WFI chief. With Amit Bharadwaj in Delhi, Bureau Report, India Today. And we spoke earlier today to Vinesh Phogat, one of the star wrestlers who's a center figure in these protests. Vinesh ji, आपने ये protest 3 महीने के बाद resume किया है. After 3 months against the World Wrestling Federation Chief Brij Bhushan Sharan Singh, आपने कहा है कि उन्होंने महिला wrestlers के साथ sexual harassment की है. आप फिर से रोड पर निकल आई है, क्या वजह है कि आप दोबारा प्रोटेस्ट कर रही हैं मैम? देखिए जी, 3 महीने पहले जब हम आए थे तो एक ही मांग के साथ में थे कि जो हमारे साथ में गलत हुआ है उसके खिलाफ में जो न्याय होना चाहिए वो उसके विरोध में हम आए थे। लेकिन 3 दिन तक हमारी मीटिंग चलती रही खेल मंत्रालय के साथ में, तब उन्होंने कमेटी बनाने का फैसला किया, मैं एग्री हो गई। लेकिन जब उन्होंने कमेटी बनाई थी तब ये बात बोली थी कि कमेटी में जो भी फाइंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम FIR दर्ज करेंगे। हम इसी विश्वास में चले गए कि चलो ठीक है, क्योंकि कोर्ट का रास्ता बहुत लंबा हो जाता है और हम नहीं चाहते थे खिलाड़ी की कोर्ट के थ्रू जाएं, केस करें। तो अगर अच्छे से सोल्व हो जाता है और अगर हमारा मान सम्मान, आत्म सम्मान अगर बच जाता है तो इससे अच्छी बात क्या है। आने वाले बच्चों का साथ में कोई हरासमेंट नहीं होगा। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा वेट कर लिया हमने और कोई भी, ना तो कमेटी में कोई मेंबर कोई कुछ बता रहा था, ना ही खेल मंत्रालय हमारा फ़ोन उठा रहा था, कोई भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं था। इसलिए दोबारा से मतलब ये हो गया कि और जहाँ पे भी जाने लगे ना कि आप झूठे हो, आप झूठ बोल रहे हो,
इतनी बड़ी बात कोई भी लड़की और देश के खिलाड़ी हैं जी, हम आत्म सम्मान कमाया, हमने हमेशा इज्जत के साथ खेले हैं। इस दाग के साथ में हम हमारी कुश्ती नहीं कर सकते और ना हम जिंदगी भर मतलब जिंदा भी नहीं रह सकते हम इस दाग के साथ में कि हमने झूठ बोला। विनय जी, आपने सुप्रीम कोर्ट भी मूव किया था दिल्ली पुलिस के खिलाफ। किस तरह से आप पुलिस का रोल देखती है? क्या आपको लगता है पुलिस एफआईआर क्यों नहीं फाइल कर रही है? क्या वजह है, क्या डर है ब्रिजभूषण शरण सिंह का? देखिए, दिल्ली पुलिस जब स्टार्टिंग से हमने कंप्लेंट्स दी हैं तभी से वो लोग प्रेशर में आ गए हैं। शायद पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है, पॉलिटिकल है, पैसे का प्रेशर है। बट दिल्ली पुलिस ने ना तो हमारी 3 दिन हो गया, आज चौथा दिन है, ना तो कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी कंप्लेंट्स ले लिए लेकिन एफआईआर रजिस्टर करने को रेडी नहीं है। एक लड़की पोक्सो है, उसमें 7 लड़कियां हैं। 7 लड़कियां कोई आसान बात नहीं होती, कोई केस करी है तो तभी उनको अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन दिल्ली पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किए हमारे नाम रिवील करी है लड़कियों के। ब्रजभूषण को नाम पता लग गया है। 2-3 लड़कियों की फैमिली के पास में, लड़की के पास में फ़ोन करके धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। अगर जान से मारने की धमकियों से नहीं डर रहे हैं तो पैसे दे के तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं बता दूं आपके माध्यम से कि 2 इंसान हैं जो ये काम कर रहे हैं। अभी हरियाणा में जनरल सेक्रेटरी हैं, राकेश करके उनका नाम है, वो कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं। हर तरीके से ब्रजभूषण का आदेश आया उनको कि हर तरीके से, किसी भी तरीके से उनको सेटल किया जाए। दूसरा एक इंसान है, द्रोणाचार्य अवॉर्डी है, महावीर बिश्नोई। वैसे तो उन्होंने जो द्रोणाचार्य लिया है वो बहुत फेक लेवल पे लिया है, लेकिन उसको छोड़ो। वो एक बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लड़कियों को मैनिपुलेट करके, डरा के, धमका के वो किया जाए। वो मेरे को भी धमकी देते थे टोक्यो के बाद में, वो मेरे हस्बैंड को भी धमकी देते थे कि आपको जान से मरवा देंगे, आपके साथ में ये हो जाएगा, आपके साथ में वो हो जाएगा। यानी आप कहीं ना कहीं कह रही है हमसे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के लोग रेसलर्स को डरा धमका रहे हैं, तो क्या कहीं ना कोई उनको क्यों बचा रहा है? ड्यू फियर सरकार बचा रही है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी बीजेपी के एमपी हैं। ब्रिजभूषण सिंह को कोई पावरफुल लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या ये आपका इल्जाम है? देखिए, 6 बार के एमपी है, कोई आसान बात नहीं है 6 बार के एमपी को गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ में कुछ एक्शन लेना। बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर है, पुलिस के ऊपर भी है और लोगों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मीडिया पे भी काफ़ी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये सब ना कवर करो, ये सब ना दिखाओ। और पैसे की भी पावर शायद वो यूज़ कर रहे हैं कि पैसा खिला के सबके मुंह बंद करवा दिए जाएं, लेकिन वो सच्चाई है ना, सच्चाई किसी चीज़ से खरीदी नहीं जा सकती। विनय जी, मैं आपसे मिला था 2-3 महीने पहले जब आपने शुरू किया था ये प्रोटेस्ट, तब आपने मुझसे कहा था यू विल नॉट अलाउ एनी पॉलिटिशियन टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म। कोई नेता नहीं आ सकता आपके प्रोटेस्ट में। बट इस बार पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, कांग्रेस वगैरह सब आपको सपोर्ट कर रही है। और बजरंग पुनिया ने कहा है वी वेलकम ऑल पार्टीज, वेदर इट इज बीजेपी, कांग्रेस, आप और एनी पार्टी, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। क्या वजह है कि अब आप पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट लेना चाहती हैं? देखिए, पहले हमें ये था कि जैसे पहली बात तो हम एथलीट, हमें ये नहीं पता था कि हम ये सुनते थे कि अगर है ना कोई भी कुछ भी अगर आवाज़ उठाओ ना तो पॉलिटिक्स को दूर रखो, पॉलिटिक्स कर जाते हैं लोग। तो हमें ये डर था कि कहीं हमारे साथ में कोई गेम ना खेल जाए, तो हमने किसी को भी आने नहीं दिया कि प्लीज़ हमारा समर्थन कर दो ऐसे ही दूर से, लेकिन आना मत, क्योंकि कहीं हमें था कि कहीं हमारे साथ में गेम ना हो जाए। कोई कुछ आया ही नहीं, उसके बाद भी हमारे साथ गेम हो गया, उसके बाद भी हमारे साथ पॉलिटिक्स कर गए, तो हम दूसरी पार्टी को क्या वो दे के उन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया। हम तो दूसरी लोगों पर विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारा समर्थन करे, क्या पता हमें तभी न्याय मिले। और इसीलिए हमने कि कोई भी आए, और सिर्फ पार्टी का नहीं है यहाँ पे बात, हमने पूरे देश से जितने भी हमारे किसान संगठन हैं, क्योंकि हम किसानों के बेटे हैं, अगर उनके बेटा बेटी दुखी हैं तो वो कैसे घर में रह सकते हैं। तो लोगों का समर्थन इतना आ रहा है कि हम कैसे मना करें। हमारा भी आत्मसम्मान है तो उनका भी आत्मसम्मान उतना ही जरूरी है, तो हम उन सब के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। That was Vinesh Phogat speaking to us earlier in the day, making it very clear that they will continue to fight against Brijbhushan Saran Singh. The big question, of course, what is this magic that Brijbhushan Saran Singh has? Someone who was once accused, remember, of shielding or providing sanctuary to aides of Dawood Ibrahim in the 1990s. Then he was arrested under TADA. Now he's being accused of sexual harassment. Who is protecting Brijbhushan Saran Singh? Is a question we'll keep asking. Let's take a break. On the other side, our Good News Today story. You're watching the News Today. News without the noise. मैं हूँ अलकनंदा।